کنیکٹ. جی چلے وہاں بیٹھ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہمارے مدنی خبروں کے شعبے ہیں. مدنی خبریں پہلے تھی، اب نیچے. اچھا اب نیچے شفٹ ہو گئی ہے. اچھا بنگلہ مدنی چینل جاؤ. یہاں سے ایک منظر دیکھ لیتے ہیں جی بغداد رضا. یہ فیضان مدینہ کو اوپر سے آپ کو منظر دکھا دیں. سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، یہ آج آپ ایک نئے انداز سے امیر سنت کو اپنے فیس بک پیج پر براہ راست دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. ہم ہیں فیس بک پیج پر، مگر ہم اس وقت گزر مدنی چینل سے رہے. یہ خاص اس جگہ پر جہاں ہم نے آنا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ اس وقت ہم ہمارے جو MCR کہلاتا ہے یہ وہاں ہے، اور انشاءاللہ ہمارے شہزاد بھائی اب امیر سنت کو انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے. اچھا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا سلسلہ ہوتا ہے لبیک. ہمارا سلسلہ ہوتا ہے لبیک. لبیک ابھی براہ راست چل رہا ہے، جہاں مجھے بھی حاضری دینی ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھتے رہے مدنی چینل والے کبھی کیا سوشل میڈیا کے اسلام میں دیکھتے رہے کبھی کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ امیر سنت کو بتائیں اردو نشریات. یہ مائک یہاں ہے امیر سنت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنا ہوگا. یہ ہمارا MCR ہے، پورا مدنی چینل یہیں سے چل رہا ہے. اردو ٹرانسمیشن، انگلش ٹرانسمیشن اردو یہاں سے چلتی ہے. جو ہمارے جیسے چلتا ہے یہاں سے کوئی بینڈ وغیرہ لگتا ہے ادھر سیٹنگ کروایا گا. اور یہ ہمارا اردو مدنی چینل ہے، اور یہ نیچے انگلش مدنی چینل ہے، اور مدنی چینل. یہ اردو تو پورا یہیں سے کنٹرول ہوتا ہے. انگلش اور بنگلہ جو ہے آپ بغداد بھائی آئیں. امیر سنت بھی کچھ دیر کے لیے یہاں پر جلوہ فرما ہوں. سمجھ میں صحیح ہے. قبلے اس وقت جی آپ اب شروع کریں. امیر سنت جزاک اللہ، آپ نے پہلے تو سوشل میڈیا کے لیے وقت دیا. بہت سارے لوگ میسیجز آ رہے ہیں. محمد اعجاز سرور ہیں، کہہ رہے ہیں یا مرشد سلام. یا السلام. میر اسرار احمد ہیں، بولے ماشاء اللہ. عبد المحسن ملک ہیں، کہہ رہے ہیں سلام باپا جانی. شایان زاہد ہیں، ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. شہزاد رضا ہیں، السلام علیکم. عمران بھائی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بھی سلام. عمران شکر چلے گئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توقیر راجپوت ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. باپا جان میرے اور میرے ابو امی کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا فرما دیں. آمین. حسنین ملک ہیں، میرے اور میرے والدین کی مدینہ پاک کی حاضری کی دعا کر دیں.
अल्लाह बाद हाजिरियाँ नसीब करे, आपके वालिदैन को भी हम सबको। दुआ की इल्तिजा सैयद वासिफ रज़ा। बापा जान और भी सवालात हैं, इंशाल्लाह मैं सवालात कर लेता हूँ। क्या खाने की अशिया पर तस्वीर बनाना जायज़ है? खाने की अशिया पर तस्वीर बनाना क्या मुराद? अच्छा कोई जैसे ग़िज़ा है, जी जी, उस पर और मिठाई है, उस पर तस्वीर बना दी। केक पर भी कुछ बना जी, लेते हैं जी। तस्वीरें वगैरह। असल वो तस्वीर जो है, एक तो होती है तस्वीर जो कागज़ पर छपती है या दीगर चीज़ों पर छपती है, प्रिंट होती है, ये है। और एक डिजिटल फ़ोटो होता है। और जैसे इस वक्त हम जो आपके पास आ रहे हैं आपकी स्क्रीनों पर, तो ये डिजिटल फ़ोटो है, शुआई तस्वीर, ये तो जायज़ है। बाकी कागज़ पर या मतलब पेनाफ्लेक्स पर, इश्तिहारों में, और ये जो तस्वीरें किताबों में छपती हैं, ये नाजायज़ है। तो इसी तरह वो केक पर ये सब बनाई या किसी भी खाने की चीज़ पर बनाई, तो ये तस्वीर भी जानदार की तस्वीर, तो जी रूह की, जिसमें रूह होती है, ये जायज़ नहीं है। वसीम अत्तारी बर्मिंघम यूके से। पापा प्लीज़ दुआ फॉर अस एंड प्लीज़ कम टू यूके। दुआ का कह रहे हैं, यूके बुला, यूके का। अल्लाह करेगा कभी ना कभी हाजिर हो जाएगी। अरबाब उबैदुल्लाह हैं। टुडे माई खाला पास जबे प्लीज़ प्रे फॉर हर। अरबाब भाई हैं, उनकी खाला का इंतकाल हो गया। अल्लाह करीम आपकी खाला को गरीब रहमत फरमाए, बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ करे, बीबी फातिमा का पड़ोस जन्नतुल फिरदौस में करे। पापा अहमद रज़ा हैं, कह रहे हैं सवाल है उनका। पापा आपकी बारगाह में एक सवाल है, अर्ज़ है कि जब कोई हमारा दिल दुखाए, जबकि हम सब्र भी करें, लेकिन दूसरा शख्स ख़ता होने के बावजूद खुद को सही साबित करने के लिए दिल आज़ारी पर दिल आज़ारी करे, ऐसी सूरत में हम क्या करें? जितना यानी कि है ना, अफ़्ज़लुल अअमाल अहमज़ुहा, अफजल तरीन अमल वो है जो जिसमें ज़हमत ज़्यादा हो। तो अगर वो आपको ज़्यादा तकलीफ़ देंगे, फिर भी आप सब्र करते चले जाएंगे, तो इंशाअल्लाह जो सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। खाके मदीना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खाके मदीना इनका आईडी है, नाम इनका मोहम्मद बिलाल अत्तारी, लाहौर से। दुआ की खुसूसी दरख्वास्त है। आईडी के नाम कोई भी वापस रख ले। जी जी। या मुर्शिदी, आप अपने मुरीदों का दिल का हाल जानते हैं, मुझे गुनाहगार के लिए भी दुआ फरमा दीजिए। इस्लामी बैंक का मैसेज है। का सद्दाम करके कोई नाम है इनका। कबूतरों को पालना कैसा? कबूतर पालना जायज़ है, लेकिन इसके साथ जो बाज़ों का जुल्म होते हैं, इनको उड़ाते रहते हैं, उतरने नहीं देते, और इसके साथ बहुत सारे गुनाहों के सिलसिले होते हैं। कबूतरबाजी जिसको बोलते हैं, ये ना कि यह सिर्फ कबूतर तो वैसे कोई पालता भी नहीं होगा, इसके साथ गुनाहों भरे सिलसिले होते हैं। वरना मुतलकन कबूतर पालना, मुर्गियाँ पालना ये जायज़ होता है। इसका नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे तो नाजायज़ हो जाएगा। मेरे कज़न उमर अत्तारी की तबीयत बहुत ख़राब है, आईसीयू में है, सेहत की दुआ फरमा दें। अल्लाह करीम शिफा कामिला आजिला नाफिया आता। एक सवाल भी है बाबा, क्या जिंदा शख्स की तरफ से उम्रा अदा किया जा सकता है? उम्रा किसी की तरफ से भी अदा नहीं होता। जैसे बोलते ना, मैं आपकी तरफ से उम्रा करूँगा, फलां की तरफ से उम्रा करूँगा। उम्रा सिर्फ अपना होता, हज बदल की तो गुंजाइश है अपने इसके शराइत। ये उम्रे का ऐसा कुछ नहीं है कि जो दूसरे की तरफ से अदा किया जा सके। ये है कि उम्रा अपनी ही तरफ से अदा करे, और इसका ईसाल सलाम जिसको चाहे कर सकता है, चाहे जिंदों को करे, चाहे अपने फोत शुदा अजीज़ों को करे। क्या ख़त्म देते वक्त खाने पीने की अशिया को ढकना ज़रूरी है? ना
ना ढकना ज़रूरी है ना खोलना ज़रूरी है, लेकिन बुज़ुर्गों का एक तरीका देखा है गया, वो खाने का जो बर्तन है उसको थोड़ा सा खोल दे, फातिहा पढ़ते हो, इसाले साफ करते हो। तो ये कि अल बरकतो मआ अकाबिरिकुम, ये एक फार्मूला हदीस पाक में है, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल बरकतो मआ अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ, बरकत तुम्हारे बुज़ुर्गों के साथ। तब बुज़ुर्गों का जो तरीका है, जो शरीयत से नहीं टकराता, अगर उस पर हम अमल करेंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हमको बरकत हासिल होगी। मुन्ना फैसलाबादी है इनकी आईडी का नाम पता नहीं क्या हो। बापा जान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाह तक लिखा होता है या आप पढ़ते? जी, जहाँ लिखा होता है वहाँ, अच्छा, जितना लिखा हो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तफ़ैल और आपकी दुआओं से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने शादी के 6 साल बाद बेटा अता फरमाया। माशाअल्लाह। वो आगे कुछ शायद दुआ का लिखा है, वो नज़र नहीं। मुबारक हो, अल्लाह ताला बच्चे को आपके लिए बाबरकत बनाए। इसमें यह कि नियत कर लें, इसको हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाएंगे, जामियतुल मदीना में दरस निज़ामी करवाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे मुफ्ती इस्लाम बन जाए। बापा ने भी आपको मुबारकबाद दी है मुन्ना भाई, अब तो आप नियत कर ही लें और मैसेज भी कर दें हमें हाथों हाथ। यारे बापा जान दरस निज़ामी में इस्तिकामत की दुआ फरमा दें, नदीम अत्तारी ज़िया कोट से। माशाअल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत नसीब करे आपको, हाली में बारम्बार। हाफिज़ शम्स कादरी हैं, क्या मस्जिद में छोटे बच्चों को कुरान पढ़ा सकते हैं? ये इतना छोटा बच्चा के जो मस्जिद में गंदगी कर दे, उसको तो मस्जिद में लाना ही ना जायज़ है। जिसका ज़न्ने गालिब हो कि ये पेशाब वगैरह कर देगा, चाहे पेम्पर हो, तब भी नाजायज़। और ऐसा बच्चा के जो दास बड़े समझदार हो जाते हैं, जो बोलते हैं कि पेशाब लगी है, लगा है, तो उनको भी लाना मकरूह तंज़ीही है, नापसंदीदा है। लेकिन अगर ये बड़े बच्चे शोर मचाएं, पता है कि शोर मचाते हैं, शरारतें करते हैं, फिर ऐसे बच्चों को लाना नाजायज़ हो जाएगा। वो चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, अब बड़ी उम्र हो बच्चे की, भले 10 साल का हो, मगर ये तंग करता हो तो हंगामे तंग करना उचित है। शोर मचाता हो जिससे मस्जिद का तकद्दुस पामाल होता हो, नमाजियों को तकलीफ होती हो। ऐसा भी देखा है कि वो मस्जिद में बच्चों को ले आते हैं और बच्चे पीछे, वो नमाज पढ़े, बच्चे पीछे गेमें खेल रहे हैं, हाँ, हम दौड़ी कर रहे हैं। रमज़ान शरीफ में ज़्यादा होता होगा, जुम्मे को होता होगा, ईदैन में होता होगा, तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाना जायज़ नहीं। एक बच्चा होता है तो बाजू का सेट रहता है, एक से ज़्यादा होते तो फिर ये कबड्डी खेलते, तो इनको मस्जिद में न लाया जाए। नहीं अहमद है, मदीना मुनव्वरा में आपका सलाम अर्ज़ करता हूँ, मेरी सेहत के लिए दुआ फरमा दें, मेरे अब्बू के लिए। माशाअल्लाह, आपकी इस नवाजिश का शुक्रिया। क्योंकि मैंने रफ़ीक़ुल हरमैन में अर्ज़ की हुई है, हाज़री पर मेरा सलाम अर्ज़ किया है। हाँ, जिसने कहा ना हो उसकी तरफ से सलाम नहीं कह सकते। सलमान भाई, आप इस वक्त मदनी चैनल पर बराह रास्त हैं और मैं आपको कुछ बताऊं, आज अमीर सुन्नत ये देखिए, ये देखिए, आज अमीर सुन्नत इस वक्त अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर बराह रास्त है, ठीक है। और इस वक्त फेसबुक पर भी हम बराह रास्त देखे जा रहे हैं, अमीर सुन्नत की ज़ियारत हो रही है। और इस वक्त इंशाअल्लाह अभी हम जहाँ हैं वहीं से हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके जो सिलसिला है लब्बैक मदनी चैनल का सिलसिला है, इंशाअल्लाह वहाँ पर अभी हम भी आ रहे हैं। मैं इस वक्त आज अमीर सुन के साथ आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है। तो अमीर सुन्नत जी, अब लब्बैक तो कहा हुआ है ना आपको, अभी फिलहाल अभी हम फेसबुक पर तो हैं, फेसबुक के इस्लामी भाइयों आप भी हमारे साथ रहिए जी, ठीक है। अभी हम चलेंगे मदनी चैनल के बराह रास्त सिलसिले की तरफ, शुआओं के जरिए या ऑन फुट एक चलते जाएंगे। अभी हम मदनी चैनल के इस सिलसिले लब्बैक की तरफ इस वक्त। अब आप देखिए हमारा ये मदनी चैनल की इमारत में ही है। सलमान भाई तैयारी है ना?
ہاں بھائی پکڑ کے رکھنا، گر نہیں جانا کرسی سے. بھائی اس وقت تو فیس بک کے اوپر براہ راست دیکھے جا رہے ہیں. آپ تو بھی ہمارے فیس بک والوں کو تو آپ نظر نہیں آئیں گے. کچھ ہمارے سوالات ہیں ہم وہ کر لیں. ہاں یہ سوالات ہیں، یہ بھی ہوتے رہیں گے. یہ فیس بک والوں کو یہ چاہیے کہ یہ ہمارا مطلب سارا جو نظام ہے مدنی چینل کا، تو یہ انشاءاللہ بھی ہم امیل سنت کے ساتھ جا رہے ہیں لبیک سلسلے میں. اچھا وہ بنگلہ دیشی امیل سنت سر ہے کہ ہمارے بنگلہ بھاشی جو اسلامی بھائی ہیں، ان کی نشریات ہم یہاں سے ہم چلاتے ہیں. مدنی چینل کے اسلامی بھائی بھی ساتھ ساتھ ہیں، سوشل میڈیا بھی اس وقت ساتھ ساتھ ہے، اور دعوت اسلامی اس وقت فیس بک پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. امیر سنت مدنی چینل کی اور جاری ہے. بنگلہ ہمارا جو بنگلہ بھاشی اسلامی بھائی جو ہے بنگلہ نشریات مدنی چینل کی، یہ ہمارے حصے سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. تو وہاں کے اسلامی بھائی امیر سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہے ہیں.